کوئٹہ میں سانحہ مچ کے شہداء کی نماز جنازہ ادا، وفاقی صوبائی وزراء، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہزارہ ٹاؤن کی قبرستان میں تدفین کی جائے گی۔ شہداء کمیٹی تمام مطالبات تسلیم کرنے پر حکومت کے شکر گزار۔ سانحہ مچ، وزیر اعظم آج کوئٹہ روانہ ہوں گے۔ خصوصی طیارہ نور خان ایئر بیس پر موجود عمران خان ورثاء سے تعزیت کریں گے۔ ہزارہ برادری کی داد رسی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید۔ لاہور، ملتان، اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک بھر میں دھرنے ختم، مظاہرین گھروں کو واپس، ٹریفک رواں دواں۔ شہدائے مچ کے لواحقین کی تائید اور حمایت کرتے ہیں مجلس وحدت المسلمین۔ لواحقین کے 2 افراد بھی اس میں شامل ہوں گے۔ صوبائی حکومت ہر فیملی کو 15 لاکھ روپے، ساتھ ہی ساتھ شرعی وارث کو نوکری بھی فراہم کرے گی۔ سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لے کر نیا پلان مرتب کیا جائے گا۔ ہزارہ برادری سے تعاون جاری رکھیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان شہداء کمیٹی اور لواحقین کے شکر گزار۔ پہلی بار ہزارہ برادری کے ساتھ حکومت نے تحریری معاہدہ کیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بھی بنا دی گئی۔ علی زیدی۔ سانحہ مچ کے بعد آپریشن کی بڑی تیاری، صوبائی حکومت سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے غافل نہیں، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وزیر داخلہ ضیاء لانگو کے امام بارگاہ ولی اثر میں میڈیا ٹاک۔ حکومت ہزارہ برادری کے ساتھ، کمیشن آزادانہ تحقیقات کر کے جلد رپورٹ پیش کرے گا۔ اپوزیشن مفاد پرست سیاست کے ذریعے مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، معاون خصوصی فردوس عاشق آوان۔ عوام نے بے مقصد جلوسوں اور ریلیوں کی منفی سیاست کو مسترد کر دیا۔ الزامات لگانے والے پہلے اپنے کرپشن آلود گریبانوں میں جھانکے۔ استعفوں کے معاملے پر PDM میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ کورونا کی دوسری لہر، مزید 40 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اب تک 10,598 اموات ہو چکی۔ 2007 نئے مریض رپورٹ۔ مہلک وائرس سے 4,99,517 شہری متاثر۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,474 تک پہنچ چکی۔ ناجائز منافع خور بے لگام، گوجرانوالہ میں چینی کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ، 94 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت۔ انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی، ذخیرہ اندوزوں سے کون نجات دلائے گا، عوام کی دہائی۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، کلات اور زیارت میں پارا -12 ڈگری تک گر گیا۔ کوئٹہ میں -10، کلام میں -9، استور ہنزا میں -8 کو چھو گیا۔ کراچی میں سردی کا زور، کم سے کم درجہ حرارت 5.8 ریکارڈ۔ ٹویٹر نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ نے امریکی صدر کے قریبی ساتھیوں مائیکل فلن اور سڈنی پاول کے اکاؤنٹ بھی معطل کر دیے۔ کوئٹہ سے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں کہ شہید کانکنوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ اس موقع پہ وفاقی اور صوبائی وزراء بھی ہمیں شریک دکھائی دیے۔ ان شہداء کی تدفین ہزارہ قبرستان میں ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزارہ کمیونٹی جو کہ سراپا احتجاج تھی اور اب ان شہید کانکنوں کو دفنا دیا گیا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں، ہماری نمائندہ اقصیٰ میر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اقصیٰ، مناظر بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے سانحہ مچ میں ہونے والے حادثے کو آج 7 دن ہو گئے اور یہاں پر دھرنے کا جو سچویشن تھا وہ گزشتہ 7 روز سے رات کو ہی یہاں پر جو وفاقی وزراء آئے انہوں نے یہاں پر مذاکرات کی، دھرنا ختم ہو گیا اور آج ہی یہاں پر لواحقین کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کے ساتھ ہی جو تدفین کا سلسلہ تھا وہ یہاں پر شروع کر دیا گیا۔ اس ٹائم میں یہاں پر ہزارہ قبرستان میں موجود ہوں اور یہاں پر
जो जहाँ बहक होने वाले अफराद थे उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और नमाज जनाजा अदा करने के बाद ही जो आखिरी रसूमात थे वो भी अदा कर दिए गए। इसमें शहरियों यहाँ पर हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, उनके साथ ही यहाँ पर वफाकी और सूबाई वुज़रा की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी, जिनमें वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो थे और उनके साथ जो है ना जो दीगर वफाकी वुज़रा थे वो भी थे। यहाँ पर देखा ये जा रहा है, मनाजिर ये है कि आखिरी रसूमात तो यहाँ पर अदा कर दी गई और दिल जो है ना इस टाइम बहुत गमज़दा है, क्योंकि कई ख़ानदानों के जो है ना वो चिराग उजड़ गए। एक घर के जो है ना 5 अफराद और एक घर के 3 अफराद जो है ना इस बहुत बड़े हादसे में जो है ना वो अपनी जानें कुर्बान कर दी उन्होंने। लेकिन इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि लोग यहाँ पर मौजूद है, नमाज जनाजा यहाँ पर अदा कर दी गई है और तदफीन भी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, लवाहिकीन भी यहाँ पर मौजूद है। उनके आंखें और उनके दिल जो है ना वो गम से यकीनन एक गमनाक सूरत हाल है जो आप मुसलसल में अपडेट करती रही। एक साहब से जानना ये चाहते हैं कि नमाज जनाजा तो अदा हो गई है, रात को ये मसला हल भी हो गया। आज खबर ये थी कि वज़ीर आज़म ने भी कोयटा पहुंचना था, इस सिलसिले में लवाहिकीन को आगाह किया गया है। कोई इस सिलसिले में उन्होंने आपसे बात की हो कि आज कोई टाइम मुकर्रर किया गया हो कि इस दौरान वज़ीर आज़म कोयटा आएंगे और इनसे मुलाकात हो पाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुज़ाकरात हुए उनकी मेन कड़ी ही यही बताई जा रही थी कि जब तक वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर नहीं आएंगे, आखिरी रसूमात यहाँ पर अदा नहीं होंगी। तो गुज़िश्ता रात जो मुज़ाकरात हुए उनमें यहाँ पर जो अली ज़ैदी साहब आए थे और उनके साथ जुल्फ़ी बुखारी भी थे, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर आज़म साहब तदफीन के फ़ौरन बाद ही कोयटा पहुँचेंगे। और कहा तो यही जा रहा है और ज़राए से भी यही पता चला है कि कुछ देर बाद जो है ना वज़ीर आज़म अपने जो उनके साथ जो उनकी काबीना है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। इससे पहले भी यहाँ पर जो वफाकी वुज़रा है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भी नमाज जनाजा यहाँ पर जब वो यहाँ पर मौजूद थे, जैसे ही नमाज जनाजा अदा हुआ उसके बाद ही यहाँ से जो वफाकी और सूबाई वुज़रा थे वो यहाँ से निकल गए। लेकिन अब यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और अब भी लवाहिकीन यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे। मतलब अब तक भी लोगों को ये लग रहा है कि शायद यहाँ पर उनके आने की कोई जो खबरें हैं वो सही नहीं है। लेकिन हमें जो है ना पता ये चला कि ज़राए से भी यही पता चला कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो शेख रशीद के अमरा यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ आएंगे, लवाहिकीन से वज़ीर आज़म के पहुंचने की खबर है और लवाहिकीन उनका इंतजार आज भी कर रहे हैं कि किस वक्त वो आएँ और उनसे ताज़ियत करें। अक्सर मीर, आपका शुक्रिया। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, हज़ारा बरादरी का कोयटा में धरना खत्म। शोहदा कमेटी के रहनुमाओं ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि किसी मजहब, मसलक या जुबान के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, शहीदों के लवाहिकीन के मुतालबे पर धरना दिया। अर्ज़ में ये धरने किसी कौम, किसी मजहब, किसी मसलक, किसी कोई भी जुबान, कोई भी बोली बोलने वाले के खिलाफ नहीं दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ शोहदा के लवाहिकीन के कहने पर यह धरना दिया गया था और शोहदा के लवाहिकीन के इत्मीनान पर ही ये धरना उसी इत्मीनान और उसी नज़्म व ज़ब्त के साथ ख़त्म करने का ऐलान यहाँ से किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने शोहदा कमेटी और लवाहिकीन के धरना खत्म करने के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। जाम कमाल का कहना था कि हमेशा कोशिश रही है हज़ारा बरादरी से ताउन करें। इस सारे मामले के हवाले से हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम हर हवाले से अपना ताउन आपके साथ रखें। वफाकी वजीर अली ज़ैदी का कहना है कि माजी में हुकूमतें वादे करके चली जाती थीं। पहली बार हज़ारा बरादरी के साथ हुकूमत ने तहरीरी मुआहिदा किया। वाक़ई की तहकीकात के लिए JIT बना दी है। जितने सालों से ये होता आया, कभी आपके साथ किसी हुकूमत ने तहरीरी मुआहिदा नहीं किया। वादे किए और वादे करके चले गए। जो शोहदा कमेटी ने मुतालबात रखे थे, जो अफसरान को तब्दील करना था या मुअत्तल करना था, जो मुतालबा था वो हो चुका है। जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए उन अफसरान पे, हो गई। JIT बननी है, JIT की अनाउंसमेंट हो गई। शोहदा के लवाहिकीन की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी धरने भी खत्म हो गए। परवेज़ इलाही से नून लीग के साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी की मुलाकात हुई है। इंतकाम की मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है। मुलाकात में ये कहना था स्पीकर पंजाब असम्बली का। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। मुलाकात की मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे हसन रजा। जी हसन। ये बिल्कुल स्पीकर
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही की वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा और रुकन कौमी असम्बली मोहन चलाई से नून लीग के साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी की मुलाकात हुई। इस मौके पर साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की गई। मुलाकात में साबिक ज़िली चेयरमैन दीवान अब्बास बुखारी और जमशेद बप्पी भी मौजूद थे। चौधरी परवेज लाई का इस मौका पर कहना था कि इंतकाम की मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है और अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। उनका ये कहना था कि जनूबी पंजाब में पहले भी अवाम की महरूमियों दूर करने के लिए अवामी फलाह मंसूबे मुकम्मल किए गए और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो जनूबी पंजाब के अधूरे काम शुरू करेंगे। चौधरी परवेज लाई का कहना था कि आइंदा भी मौका मिला तो इंशाल्लाह तरक्की का सफर जारी रखेंगे और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई की जनूबी पंजाब के लिए खिदमात का इतराफ करते हुए साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी का कहना था कि जनूबी पंजाब में चौधरी परवेज लाई और चौधरी बरादरान के कामों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। रेस्क्यू 1122 हो दीगर प्रोजेक्ट ऐसे इकदाम किए गए जो काबिल तारीफ हैं। अवाम आज भी चौधरी परवेज लाई के दौर को याद करती है और मेंबरान असम्बली की बड़ी तादाद जो साबिक और मौजूदा है वो चौधरी बरादरान के साथ खड़ी है। जी बहुत शुक्रिया हसन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम ने अपोजिशन की बेमकसद जलसों और रैलियों की मनफी सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन वाले कभी भी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि इस्तीफ़ों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी है। अपोजिशन अवामी मैंडेट का एहतराम न करके जमहूरी अक़दार की तौहीन कर रही है। इल्ज़ामात लगाने वाले पहले अपने करप्शन आलूद गिरेबानों में झांके। सूबे में वन मैन शो का खात्मा किया है। तरक्याती मंसूबे अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से मुकम्मल किए जा रहे हैं। और मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि अपोजिशन घटिया सियासत के जरिए मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशों में मसरूफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़दीक मुल्क की मुफाद हर सूरत मुकद्दम है। कौमी मफादात को ज़ाती मुफाद पर तरजीह देना हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है। मुफाद परस्त अपोजिशन हर मसले पर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है।